Hello students, welcome back. So IPMAT Indore 2023 के MCQ problems of quantitative aptitude sections discuss कर रहे हैं हम and this is question number 21. A rabbit is sitting at the base of a staircase which has 10 steps. It proceeds to the top of the staircase by climbing either one step at a time or two steps at a time. The number of ways it can reach the top is, so 10 स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So someone can jump either one step, the rabbit can jump either one step or two step at a time. So it's possible that this rabbit is jumping one step only at a time, or it's also possible that the rabbit is jumping two steps at a time and then one step. It's also possible that the rabbit is jumping few one steps and few two steps like this, you know. So combination. So how many such combination are possible? Let's say that number of times one steps has been taken. Number of times one step has been taken by rabbit is equal to 1 x, and number of times two steps has been taken by the rabbit is equal to y. So can we say that x plus 2y should be equal to 10? So how many different values of x and y are possible? Let's see. So we can take x is equal to 10, y is equal to 0. So there is only one possibility, that he took all the steps as one steps, then there will be only one way this can be done. Or we can say that number of times now think about this, value of x will decrease with the value coefficient of y, coefficient of y will increase with the coefficient of x. So it's possible that he has taken 8 one steps and 1 2 steps. So ये सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि फर्स्ट टाइम 2 स्टेप लिया, फिर 8 टाइम्स उसने 1 स्टेप लिए, या 1 स्टेप से स्टार्ट किया, फिर 2 स्टेप, फिर 7 टाइम्स 1 स्टेप्स लिए. सो हाउ मेनी वेज this can be done? So total 8 plus 1 9 terms are there, of which 8 are similar. So number of ways this can be done is 9 factorial divided by 8 factorial into 1 factorial, which is equal to 9 ways. It's also possible that he takes this 6 and this one 2. Then number of ways this can be done is 8 factorial into 6 factorial into 2 factorial. So 8 factorial divided by 6 factorial is 8 into 7 divided by 2. So this will be 28 ways. Then he can take 1 steps 4 times and 2 steps 3 times. So in that way this will become 7 factorial divided by 4 factorial into 3 factorial, which is equal to, now 7c4 or 7c3 कितना होता है, तो 7 into 6 into 5 divide by this, so this will be 35 ways. Then we can take that number of 1 steps was taken how many times, 2 times, and number of 2 steps has been taken 4 times. So 2 into 4 into 2 8 10 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल into 2 factorial 6c2, which is equal to 15 ways this can be done. And number of times 1 steps has been taken 0, number of times this has been taken 2 steps is 5. This can be done in only one way. So total, what will be our total? So total number of ways will be 1 plus 9 plus
28 plus 35 plus 15 plus 1 which is equal to 10 plus 28, 38 plus 35, 73 plus 16, 89 ways. This can be done in a total of 89 ways. Now, there is also a very good solution of this question. बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है इस क्वेश्चन का कि इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन क्या करना है कि अगर हम बात करें कितने डिफरेंट वेज में होंगे, सो नंबर ऑफ वेज विल डिपेंड ऑन फिबोनाची सीरीज. सो इफ देयर इज ओनली वन स्टेप, देयर इज ओनली वन वे दिस कैन बी डन. ओके, देयर इज ओनली वन वे. इफ देयर आर टू स्टेप्स, टू स्टेप्स में कितने वेज होंगे कि एक एक स्टेप दो बार या दो स्टेप एक बार, सो टू वेज. अगर थ्री स्टेप्स हुए तो एक एक स्टेप करके तीन स्टेप तीन बार लेने पड़ेंगे, या फिर वन स्टेप एंड टू स्टेप, और टू स्टेप एंड वन स्टेप, तो थ्री वेज. इफ देयर आर फोर स्टेप्स तो कितने वेज होंगे? वन 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 वन, ऐसा वन 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 वन, चार स्टेप्स ले लिए एक एक स्टेप करके, और वन टू वन, और टू वन वन, वन वन टू, और टू टू, और कोई बचा क्या? सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? देखो यहाँ पे 5 आ गए. सो ये 5, तो ये एक फिबोनाची सीक्वेंस बन रहा है 1 2 3 5, देन 8, देन 13, देन 21, देन 34, देन 55 एंड देन कम्स 89. सो वन स्टेप हो तो एक पॉसिबिलिटी, दो स्टेप्स है तो दो पॉसिबिलिटी, तीन स्टेप्स है तो तीन पॉसिबिलिटी, चार स्टेप्स है तो 5 डिफरेंट वेज दिस कैन बी डन, और 10 स्टेप्स हो तो इन 89 डिफरेंट वेज दिस कैन बी डन. अगर 11 स्टेप्स होते तो क्या होता है आंसर? 55 प्लस 89, 89 प्लस 11 हो गया 144. सो आवर आंसर वुड बी 144. इन अदर वे यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि अगर लास्ट स्टेप की हम बात करें तो जो लास्ट स्टेप है वो या तो एक स्टेप हो सकता है या दो स्टेप हो सकता है ना. तो अगर वो 8 तक पहुंच गया तो वहां से जाने के एक तरीके, अगर वो 9th स्टेप तक पहुंच गया तो वहां से जाने के एक तरीके. सो टोटल कितने वेज हो जाएंगे 10 स्टेप्स तक पहुंचने के? कि जितने वेज में वो 8 स्टेप्स तक पहुंच सकता है, प्लस जितने वेज में 9th स्टेप्स तक पहुंच सकता है. So in that case we can generalize this and we can say that if you need to find number of steps when there are k plus 2 steps, this will be equal to number of steps when there are k steps plus number of ways when there are k plus 1 steps. सीधा जनरलाइज्ड वे. सो दो अलग अलग मेथड से मैंने समझा दिया है ये चीज़, और एक ये टोटल 3 डिफरेंट मेथड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. So I hope you understood all the solutions. Now question it says if cos alpha plus cos beta is equal to 1, then the maximum value of sin alpha minus sin beta is. So how do we solve this? Let's say that let sin alpha minus sin beta is equal to k. Okay, and if we take the square like cos alpha plus cos beta whole square plus sin alpha minus sin beta whole square, then this gives us, this is 1, so 1 square plus k square. Or if we break this, we can write cos square alpha plus cos square beta plus 2 cos alpha into cos beta plus sin square alpha plus sin square beta minus 2 sin alpha into sin beta is equal to 1 plus k square. है ना? So from there, if you check, this is cos square alpha, this is sin square alpha. So in place of this, we can write 1 plus, then comes cos square beta
sine square beta, again this will be 1 plus, if you take 2 common, this will be cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta is equal to 1 plus k square. So from there we can say 2 plus 2 times, अच्छा cos alpha into cos beta minus sin alpha into sin beta क्या होता है? This is nothing but cos alpha plus beta. So this will be cos alpha plus beta is equal to 1 plus k square, है ना? So from there we can say k square will be equal to 1 plus 2 times cos alpha plus beta, or k is equal to square root of 1 plus 2 cos alpha plus beta. Now we need to maximize the value of k. If we need to maximize the value of k, so 1 तो कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, तो इसी की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी होगी. सो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम ऑफ cos alpha plus beta will be equal to 1, right? So let's put that value here. So can we say that k maximum will be equal to square root of 1 plus 2, which is nothing but square root of 3, and our answer is option C. ठीक है. Now let's go to question number 23, which is again a very good question, है ना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर पे. लेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x एंड fractional part of x which is equal to x minus greatest integer of x. If n is a natural number, then the sum of all the values of x, sum of all the values of x satisfying the equation 2 of greatest integer of x plus is equal to x plus n into fractional part of x. So how do we solve this? Now यहाँ दिया हुआ है कि fractional part of x is equal to x minus greatest integer of x. If I put that here, can I write 2 times greatest integer of x will be equal to x plus n times. अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं x minus greatest integer of x, or we can say 2 times greatest integer of x will be equal to x plus n into x minus n into greatest integer of x, or we can say ये हो जाएगा, इधर ले आओ, तो 2 into greatest integer of x plus n times greatest integer of x is equal to x कॉमन ले लें तो x into n plus 1 हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x into n plus 2 is equal to x into n plus 1, or we what do we want? We want all the possible sum of all the possible values of x in terms of n. So ये क्या हो जाएगा? n plus 2 divided by n plus 1 into greatest integer of x. Now अब जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यहाँ आती है कि x की ऐसी क्या क्या वैल्यूज हम ले सकते हैं. सो ये दिया हुआ है इफ n इज ए नेचुरल नंबर. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग n एनी नेचुरल नंबर. तो अगर n की वैल्यू मान लो कुछ ले लिया 4, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो इंटीजर होगा, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर होगा, तो ये क्या क्या हो सकता है? ये 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -4 -5 कुछ भी हो सकता है. तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 लूँ तो x 0 बन जा रहा है ना? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 लूँ तो x 0 बन जा रहा है, ठीक है, वो सही है. अगर मैं x की वैल्यू 1 लूँ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 लूँ तो x क्या बन रहा है? 6/5, विच मेक सेंस. 6/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 लूँ
तो x आ जाएगा 12/5। अगेन 12/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 2 है, तो सही हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 3 लूँ तो ये 18/5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 18/5 जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, सही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये इंटीजर वैल्यू 4 लूँ तो 24/5 कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग। तो x 4 पॉइंट समथिंग है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है जो हमने एज्यूम किया था, ये भी सही है। बट अगर x की वैल्यू 5 लो तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 लिया x का, बट x कितना आ रहा है 6, और 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है 6, तो वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पॉजिटिव में जो x की वैल्यू हम ले पा रहे हैं, कहाँ तक ले पा रहे हैं, 0 1 2 3 4 तक, उससे ज़्यादा नहीं ले पा रहे, है ना, 5 भी नहीं ले पा रहे। अब अगर नेगेटिव चेक करें, अगर x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 लें तो x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -2 से बड़ा और -1 और उससे छोटा, तो ये हो जाएगा -6/5। x की वैल्यू -6/5 अगर लेते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सो इट्स वी नीड टू गो टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, दिस विल बी इक्वल टू -2, मतलब ये भी सही नहीं है। सो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ले सकते हैं, है ना। सो x की वैल्यू अगर 4 है, अगर n की वैल्यू 4 है तो x क्या क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 एंड 4। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। अगर x की वैल्यू, अगर n की वैल्यू n ही ले लें तो क्या वैल्यू ले सकते हैं x की, 0 1 2 3 अप टू n। सो जो x की वैल्यूज हैं वो हम क्या ले सकते हैं, टोटल वैल्यूज जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की हम ले सकते हैं वो 0 ऐसे भी इग्नोर कर दो, तो 1 2 3 4 5 अप टू n, तो 1 से लेकर n का सम कितना होता है, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो देखो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 रखोगे तो वैल्यू आएगी n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये x की वैल्यू। जब 2 रखोगे, जब 3 रखोगे, जब 4 रखोगे और जब n रखोगे, कुछ ना कुछ x की वैल्यू मिलती रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x विल बी इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 up to n, which gives us n plus 2 divided by n plus 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इफ यू चेक द ऑप्शंस, ऑप्शन इज डी। नाउ ड्यूरिंग एग्जाम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं था, टू मच टाइम टेकिंग है, और आपको n की वैल्यूज लेके समझनी पड़ती है कि आप क्या क्या वैल्यूज x की ले सकते हो, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू नॉट अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग एग्जाम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, which says the set of all real values of x satisfying the equation inequality x square into x plus 1 divided by x minus 1 into 2x plus 1 cube is greater than 0। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, सिंपली नंबर लाइन पे जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो ले लो। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास, 4। सबसे बड़ा कौन सा है, तो 1, उसके बाद 0, उसके बाद -1/2, उसके बाद -1, है ना। अब अगर हम x की कोई भी वैल्यू लें जो 1 से बड़ी हो, हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगा एक्सप्रेशन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी सारे कुछ पॉजिटिव होंगे। अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लें, अगर 0 से 1 के बीच में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, बट ये बाकी तीनों अभी भी पॉजिटिव रहेंगे, सो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू -1/2 और 0 के बीच में लूं तो जो भी इसके बाद है वो तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, बट दोनों, ये दोनों अभी भी पॉजिटिव रहेंगे, सो टोटल पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। एंड देन अगेन अगर x की वैल्यू
मैं -1 एंड -1/2 के बीच में लूँ, अच्छा -1/2 यहाँ पे पावर ऑड है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर ठीक है। सो एक चीज़ यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि अगर हमने वैल्यू 0 और -1/2 के बीच में ली, तो चूंकि एक्स स्क्वायर है तो ये नेगेटिव होके भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव होके भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला टर्म पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला टर्म भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव ही आएगी। एंड देन अगर x की वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में लें, -1 से -1/2 के बीच में, तो देखो इसके बाद वाले सारे पॉजिटिव हों, सॉरी नेगेटिव होंगे, तो ये स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स प्लस वन क्या होगा? एक्स प्लस वन ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू -1 से -1/2 के बीच में ली है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हमने -1/2 से छोटी वैल्यू ली है, और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सो ओवरऑल ये वैल्यू भी यहाँ इस बीच में x कुछ भी लोगे तो नेगेटिव होगा। अच्छा -1 से पहले कुछ भी ले तो ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, x प्लस वन नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और x -1 ये क्या हो जाएगा? सो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो ओवरऑल जो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ये अगर हम बात करें कि क्या वैल्यू आएगी -1 से पीछे रखने पे, तो फिर से देखो ये वैल्यू अगर x की वैल्यू हम कहीं यहाँ पे ले रहे हैं -1 से पहले, तो x तो नेगेटिव है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा। x प्लस वन मान लो -2 ले लिया तो ये तो नेगेटिव होगा, -2 ले लिया तो ये नेगेटिव होगा, -2 ले लिया तो ये नेगेटिव। सो ओवरऑल ये भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा, राइट। सो हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है